ठीक है। Now the caselets, what do we mean by the caselet? Caselet is a mathematical puzzle in which we get a puzzle of mathematics and we need to solve that. We need to create a table for that. And the three basic topics which one should know before doing it, that is average, percentage, ratio. If one is aware about these three topics, they may easily go ahead and solve the questions on caselets. For example, they have given a data to you guys, a simple data they have given to you, numbers लिखे हुए हैं. So this is not I said कि एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा कि बिल्कुल सिंपल लाइन लिखी होंगी कि 2012 में 4.5 मिलियन था एंड 2013 में 6.1 हो गया, नेक्स्ट में 6.8, 7.9, ऐसे डेटा नहीं आएगा, बल्कि डेटा आएगा कुछ दूसरी तरह जो मैंने अभी आपको समझाया. That ABC is an Indian sports goods manufacturing company. Company had a revenue of 4.5 million in 2012. तो ये पार्ट आपको मिल गया डायरेक्ट. फिर उसने आपको बोला था कि द रेशियो ऑफ रेवेन्यू इन 2012 एंड 16 वाज 9:13. तो अगर 2012 4.5 दैट इज इक्वल टू 9, तो 13 इज गोइंग टू बी 6.5. ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था अभी. देन वी हैव एक्चुअल ड्रॉप जो 2015 से 2016 में हुआ. तो ड्रॉप 15 to 16 was 2x. Then in 16 to 17, revenue in 2014 was 0.3 million more than in 2016. So when I got 6.5, I got 6.8 from here because they said 2014 में 2014 में 0.3 million ज़्यादा था. Then growth in revenue 2013 they said 1.6 million था. The growth means from the previous year. तो 2012 का मुझे 4.5 गिवन था, यहाँ से I got 6.1 and 2015 का they gave 1.1, तो that got added became 7.9. For 17 I could find कि dip यहाँ पर 1.4 million का हुआ, तो यहाँ 0.7 का है, या फिर मुझे टोटल गिवन था 37.6 हुआ है from 2012 से 2017. So I could add all these numbers till 16 and then I could subtract it from 37.6. There are two ways. So any ways you are able to understand, you could do it. Now let's solve a questions on that. और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं केसलेट्स में? एक तो आपको दिखाया मैथमेटिकल पजल आया, दूसरा एक और काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता है केसलेट्स में व्हिच इज अ पजल अगेन, not exactly in maths on the quant but a mixed one. Let's solve that also. Yeah, there are 5 different vintage cars: Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4 and Mark 5. Their owners are A, B, C, D, E. Now order नहीं मालूम कि A Mark 1 का है, B Mark 2 का है, ऐसे नहीं. We're not aware about that. They said not necessarily in that order. ऐसा नहीं होने वाला. The maximum speed of each car in ascending order of the car number. तो मतलब जो स्पीड्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में है. मार्क 1 की सबसे कम, मार्क 2 की उससे ज्यादा, मार्क 3 की उससे ज्यादा, मार्क 4 उससे भी ज्यादा, मार्क 5 गोना बी हाईएस्ट. 2 of the cars cost 4 million USD. बाकी सबका 1, 3 and 5. Number of seats 2, 2, 4, 6 and 10. It's more like a complex arrangement question. Now the following information given है. Mark 3 is the least expensive. Now this kind of table you can make. इसी टेबल पे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन को. इन्होंने बोला मार्क 3 is the least expensive. That means मार्क 3 जो है उसका कॉस्ट होगा $1, सबसे least expensive. This line is done. जहां आपको डाउट आएगा प्लीज रेज योर हैंड इमीडिएटली. Let me know so I can explain that part again. Second line says Mark 1 and Mark 2 have a maximum speed of 40 and 60 in any order. Any order मुझे मालूम है स्पीड्स ascending order में. That means Mark 1 की स्पीड 40 है and Mark 2 की स्पीड 60 है. That is automatically I could understand, right? Number 3, the cars whose cost is a composite number. Now 1, 3, 5. 1 ना तो prime ना composite. 3 and 5 दोनों prime numbers हैं. 4 is the composite number. So the car whose cost is a composite number, Mark 1 and Mark 4. That means Mark 1 की cost भी 4 million USD है और Mark 4 की भी 4 million USD है. Whose owners है B and C but order नहीं मालूम. तो यहाँ पर या तो B आएगा या फिर C, और अगर B मार्क 1 का ऑनर है तो मार्क 4 का C होगा एंड वाइस वर्सा. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वन ऑफ दीज कार इज 100. ऑफ कोर्स इसकी स्पीड मुझे 40 मालूम है, तो 100 स्पीड जो है मार्क 4 की आने वाली है. दिस इज आल्सो डन.
The first 3 points are clear to us. Yes, sir. Yes, sir. Number 4, the maximum speed of A's car is twice that of E's car. A की जो कार की स्पीड होगी वो E की कार से डबल है, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट ए और सी की कार कौन सी है, तो आई कांट मेक इट. ऑफ कोर्स अगर ये 60 का डबल 120 बन सकता है, ये हो सकता है, या 100 का डबल 200 हो सकता है. दैट इज व्हाट इज पॉसिबल. नेक्स्ट लाइन व्हिच वी हैव, in any case if I say maximum speed of A's car is twice, in any case अच्छा 40 का 80 भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे मालूम है बी और सी नहीं है, बी और सी आना है, तो यहाँ पर ई नहीं आ सकता. दैट मीन्स ए की कार डेफिनेटली ये होने वाली है, क्योंकि या तो ये 100 का डबल 200 होगा, या 60 का डबल 120 होगा, या यहाँ जो भी आएगा उसका डबल होगा, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है ई की स्पीड से. तो ई कैन बी दिस और ई कैन बी दिस, इन दोनों में से एक ई होने वाला है. Mark 1 and Mark 3 of the same sitting capacity. Now same sitting capacity जो था that was 2:2. तो ये है मेरे पास Mark 1 and Mark 3 की. तो Mark 1 की sitting capacity 2, Mark 3 की sitting capacity भी 2. This line is also done. Sum of number of seats in Mark 2 and the car owned by C is equal to number of seats in Mark 5. Now Mark 2 की जो भी numbers हो 4, 6 और 10 बचे हुए, और C की जो गाड़ी है, now C की गाड़ी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, वो मार्क 5 के इक्वल आने वाली है. दैट मीन्स या तो यहां पर 6 आएगा और यहां पर 4, 10 हो जाएगा, और अगर ये सी की है तो यहां पर 2 और यहां पर 4 और यहां 6 आ जाएगा. तो इसको भी छोड़ते हैं. देयर आर 2 ऑप्शंस. Then they say the cars 10 seats have a maximum speed of 200 km owned by A. Now 200 का speed that can be only here. 10 seats that is also possible. ए ने कार है 200, ये डन हो गया. अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि मार्क 2 और मार्क सी ये सी नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 और 2 6 होता, पर ये इक्वल टू 10 नहीं आ सकता, बिकॉज उसने बोला है मेरे को लाइन नंबर 6 के अंदर कि मार्क 2, दैट मींस दिस जो भी नंबर आएगा 4 या 6 ही आ सकता है, और मार्क ओन बाय सी, और सी की कार ये होने वाली है, ये भी 4 या 6 में से कुछ आ सकता है, क्योंकि ये अगर आ गई 2 हो गई यहाँ पे, तो 4 + 2 6 होता है, बट यहाँ पे मुझे 10 गिवन है, जो उसने बोला था इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन मार्क 5 होना चाहिए, तो 10 है. मार्क 2 का 4 और 6 होने वाला है, तो यहाँ पर सी वाली या तो 2 होगी या फिर यहां से आएगी. 2 का तो कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है 10 के साथ. 4 + 2 6, 6 + 2 8, 10 तो आना ही नहीं, मतलब ये सी नहीं हो सकता. दैट मीन दिस इज डेफिनेटली बी एंड दिस इज डेफिनेटली सी. तो ये अगर 4 है तो ये 6 है, और ये अगर 6 है तो ये 4 है, मतलब 2 ऑप्शन आ गई, 4 6, या तो 6 या फिर 4, मिलके 10 बनना ही बनना है. नाउ ये वाली लाइन भी डन हो गई मेरी. यहां से ए की कार ट्वाइस है ई की कार से, तो 200 का हाफ होगा 100, मतलब 100 यहां आएगा, और ये ई की कार होगी. बाकी बचा डी, डी यहां आ गया. The sum of the cost of Mark 1 and Mark 3 is equal to cost of Mark 5. अब 1 और 3, that is 4 and 1 5, that means Mark 5 का cost 5 हो गया, बचा क्या 3. 3 has to be here. Now only one option I have जो मेरा अभी सोल्व नहीं हुआ, वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन है, बाकी पूरा का पूरा केसलेट मेरा सोल्व है. इज दिस क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now the question, which car is owned by B? Now B की कार है Mark 1, that is the answer I get. आपकी बुक्स में उन्होंने सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. Now what is the sum of sitting capacity of 2, 3 and 4? Now sitting capacity of 2, 3 and 4 क्या आने वाला है? 2, 3 and 4. 2 और 4 का मिला के तो 10 आना ही आना है, चाहे 4 and 6 जैसे मर्जी आ जाए, और ये 2 12. That means the answer to number 2 question I have, the sitting capacity going to be 12. Now which two cars have the same maximum speed
That was Mark 3 and Mark 4, 100 ऑप्शन में नहीं है, तो none of these. What is the cost of Mark 2? Now Mark 2 का जो cost आया था हमारा, that is $3 million. So I'll give the answer as $3 million. Now this is caselet. One caselet you solve and you get multiple answers. Is that clear? Yes, sir. Now there is one more caselet which is on the base of Venn diagram. Venn diagram की क्लास YouTube पे भी है और आप लोगों ने कईयों ने की भी होगी, नहीं की है तो एक बार वो भी देख लेना, वरना यहाँ से समझने की कोशिश करना। नहीं तो अगर इसका टॉपिक नहीं हुआ है तो वो तो करवाना ही करवाना है, जैसे आपका भी वो करवाना है टॉपिक आपका। तो 200 इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं। क्लास 11 में मैथ्स किसके पास था? 11th में मैथ्स आप लोग के पास मैथ्स था? अक्षय नहीं बोला? यस सर, मेरे पास तो अभी भी है। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेट थ्योरी का टॉपिक था वेन डायग्राम्स वाला, सबको याद होगा, हाँ उसी को जी यूज सर। करने वाले हैं। उसी के बेस पे केसलेट आता है कई बार। तो 200 इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स वर सर्वेड अबाउट द ब्रांच दे इंटेंडेड टू ऑप्ट फॉर मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं। दे आर फ्री टू गिव मोर देन वन चॉइस इफ दे वर नॉट दे श्योर। अगर जहां ये लाइन लिखी आ जाए ना, दे आर फ्री टू गिव मोर देन वन चॉइस, सीधा सीधा मतलब है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है आपका ये। The number of students who wanted to opt for only mechanical engineering was thrice the number of students who gave all the 3 branches. तो इन्होंने यहां देखो कैसे बनाया, सारों को इन्होंने मान लिया x और only mechanical, this part is only mechanical, इसको 3x ले लिया और ये तीनों का पार्ट है, इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर और जो नेक्स्ट था हमारा इलेक्ट्रिकल, तीनों आ गए। तो 3 सर्कल बनाए हैं, लाइक बड़ा इजी है बनाना, आप बना सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ सर्कल दे है। ये एग्जैक्टली 1 होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया होगा। ये वाले पार्ट्स एग्जैक्टली 2 हैं बिकॉज 2 सर्कल्स के पार्ट्स हैं, और ये वाले पार्ट्स हमारे एग्जैक्टली 3 हैं। तो जब इसने मुझे बोला क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who want to opt only, now only what is very important here, only mechanical engineering was thrice the number of students who gave all the 3, तो मैंने all 3 को ले लिया x और इसको ले लिया 3x। the number of students who gave exactly 2 choice are 20, मतलब a b c ये सारा मिला के 20 होने वाला है, क्योंकि उसने बोला exactly 2 वाले टोटल मिला के 20 है, which is half the number of students who wanted to opt only computer engineering। तो 20 नंबर हाफ है, डबल हो गया 40। ओनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग 40 यहां लिख दिया इन्होंने, ओनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये वाला पार्ट बना आपका, दिस इज ओनली कंप्यूटर, इस साइड वाला। 36 स्टूडेंट्स वांट टू ऑप्ट फॉर ओनली इलेक्ट्रिकल, वो 36 यहां पे आ गए। ओनली इलेक्ट्रिकल दैट मींस दिस पार्ट। The number of students who did not want to opt for any of the 3 was 1/4 of those who gave their choice for at least one of them। तो जिन लोगों ने कम से कम एक को चॉइस तो किया ही है, मतलब 1, 2 और 3 को, राइट, उसका 1/4 बाहर है जिन्होंने कुछ भी चूज नहीं किया, दैट दे हैव टेकन डी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांटेड टू ऑप्ट फॉर ओनली वन ऑफ 3 ब्रांचेस। ये आपको मालूम है 40, ये आपको मालूम है 36, आपको 3x नहीं मालूम, ये निकालना पड़ेगा। ये ओनली 1 वाले हैं, 40 एंड 36 76 प्लस 3x। टोटल उन्होंने आपको बताया, टोटल स्टूडेंट्स दे हैव 200। तो यहां से आई कैन फाइंड आउट टोटल, अगर 200 हैं, इस पे 0 वाले डी हैं, 1 वाले 40 प्लस 36 76 प्लस 3x वाले हो गए, 2 वाले 20 हो गए एग्जैक्टली 2, और एग्जैक्टली 3 वाले हो गए x। 0 1 2 एंड 3 सारे मिला के 200 होने चाहिए। और d का मुझे पता है कि 1/4 वो है जो एटलीस्ट ये वाले होने वाले, दैट इज आल्सो दे हैव सेड टू मी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है हमें? नाउ व्हाट आई कैन फाइंड आउट, आई कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम हियर। अब मैं यहां से एक इक्वेशन बना सकता हूं। क्या इक्वेशन बनेगी? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। d प्लस
96 plus 4x. That's what exactly I get. यहां तक मुझे बताओ अगर कोई भी डाउट है किसी को तो. If anybody has a doubt till here, let me know. नो सर. नो सर. ठीक है जी. नाउ डी मेरा था 0 वाला. अब ये बाकी जो 96 प्लस 4x है ये कम से कम एक तो है ही है, 1 2 और 3 वाले हैं. और डी का मुझे मालूम है दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अदर पार्ट, 1/4 ऑफ 96 प्लस 4x. इफ आई सॉल्व इट डी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 24 प्लस x. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. Now that means I can write here 24 plus x plus 96 plus 4x. That is equal to 5x plus 120, which is equal to 200 on the left hand side. That means 5x equal to 80. That means x is equal to 16. यहां तक अगर क्लियर है तो बताओ. Are we clear till here? यस सर. नाउ अगर x मेरा 16 है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया ओनली वन ऑफ 3 ब्रांचेस. ओनली वन में मेरे पास 76 प्लस 3x है. 3x की वैल्यू होगी 48. तो 76 प्लस 48 द आंसर गोना बी 124. दैट इज द आंसर हियर. एंड व्हेन दे से हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव ऑल द 3 ब्रांचेस मतलब x, क्योंकि ऑल द 3 ब्रांचेस मेरा जो था दैट वाज द सेंटर पार्ट. x की वैल्यू मैं 16 निकाल चुका हूं. दैट मींस द आंसर शुड बी 16. डन. Then they say what is the difference in the number of students who gave only computer engineering as their choice and those who did not give any of the 3 choices. Now did not give any of the 3, that was D, which was x plus 24, which was 16 plus 24 40, and only computer engineering, that was also 40. तो ये भी 40, ये भी 40. उसने पूछा डिफरेंस 40 माइनस 40 0. दैट इज द आंसर. समझ आ रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if the number of students who give only mechanical and electrical, now only mechanical and electrical is 7. only mechanical and electrical कौन सा पार्ट है? ये सारा है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल. बी है ओनली क्योंकि इसमें कंप्यूटर नहीं है. तो बी का मतलब हो गया 7. सो दिस पार्ट इज बी. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज द चॉइसेस? नाउ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल कितने हैं? 40. एक्स की वैल्यू 16 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 20 था मेरे पास, गिवन था. बी की वैल्यू 7 है मतलब ए प्लस सी 13 होगा प्लस 13. तो टोटल कम्स आउट टू बी 69. सो दिस शुड बी द आंसर. दिस इज द आंसर हियर. नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव एट मोस्ट. नाउ एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 2 फील्ड्स. नाउ मैक्सिमम 2 फील्ड्स का मतलब है 0 1 एंड 2. 3 नहीं काउंट करना. अब 3 का मुझे मालूम है 3 का आंसर 16 है. एट मोस्ट 2 बोला ना इसने मुझे. एट मोस्ट 2 में मुझे सारे ऐड करने पड़ेंगे. तो 200 माइनस 16, सिर्फ 3 वाले को बाहर निकाल दो. यू विल गेट द आंसर एज 184. इनका ये आंसर गलत है यहाँ पे बिकॉज एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा. एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम. तो 0 इंक्लूड करना जरूरी है. सो दे हैव डन इट रॉन्ग. इसको इग्नोर करो. दिस इज द राइट आंसर. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. वो प्रिंटिंग इशू है, किसने प्रिंटिंग गलत प्रिंट हो गया होगा. They did not pay attention towards that, but we being a human beings, we can see what is wrong, what is right. So we can easily say no to the printed materials and we can prove it. Maximum at most मतलब maximum, maximum 2 के मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा. और 0 के नंबर कितने थे मेरे पास? 48 थे. 1 का मैंने पीछे निकाल ही दिया था, 124 था.
2 वाले मुझे पता है 20 है, अगर मैं इनको भी ऐड करूं तब भी मेरा आंसर 184 ही आएगा. सो डू इट एनीवे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, यू गोना गेट द आंसर सेम 184. Is this caselet clear? We have the last caselet after this, and the caselet Yes. topic will be completed. Done? Yes, sir. Now look at the next question we have. This is again a caselet on the basis of the mathematical operations. An institute offers a degree with specialization available in science, commerce, and arts. That means you have science, you have commerce, and you have arts. 35% of total students are girls. So matlab you're gonna have boys and you're gonna have girls. तो जो गर्ल्स है वो 35% है, दैट मीन जो बॉयज होंगे वो 65% होंगे. द नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग कॉमर्स इज 416. तो बॉयज स्टडीइंग कॉमर्स इज 416, which is 40% of total number of boys. That means 416 is equal to 40 by 100, 40% of boys. 0 to 0 cancel, 4104. That means boys gonna be 1040. तो बॉयज टोटल जो होंगे वो 1040 नंबर होगा. Now अगर 65% is equal to 1040, 35% कितना होगा? Easy to calculate. If I have 65%, that is equal to 1040. 1% is equal to 1040 by 65, and 35% will be multiplied by 35. Now this is 5 into 7, 5 into 13, 13 into 8, 8 into 7, 56. So this is 560. Because numbers भी आ गए. Clear हो रहा है? Now they are giving the puzzle because वो चाहते हैं कि आप लोग mathematical calculations करो, puzzles को solve करो. Now अब कहता है 45% of the girls. अब girls कितनी है? 40, total 560 है, उसका 45%. तो 560 into 45 by 100. 5 into 2, 5 into 9, 228. 28 into 9 is 252. So 252 girls study arts. This was arts, commerce, and science. Number of boys and girls study commerce is 4:1. तो boys अगर 416 commerce है तो ये 4:1 मतलब 104 divide by 4. 25% of boys science पढ़ते हैं, 25% of 1040, that means 25 into 4, 400, 4 into 2, and 60. That means 260. तो बाकी निकालना बड़ा आसान है. अगर ये टोटल 1040 है तो इसको मिला के, तीनों को मिला के 260 and 416 से 676. तो 104 में से आप 676 माइनस कर दो, you will get 364. तो ये नंबर आया 364. ये 560 चाहिए. 252 and 104 is 356. That means this number is 204. Now the question they have, अब यहां तक क्लियर है? पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में ये. हाँ जी सर. This is gonna give me the answer. Now the question says how many girls study science? That is 204. That means none of these is the answer. Science तो 204 थी girls. इन्होंने टेबल बनाया भी हुआ है. Option number 4. The number of girls studying commerce is what percent number of boys studying science? The number of girls studying commerce, that is 104. It has to be compared. So numerator आएगा divide by number of boys studying science, that is 260. So 104 by 260 into 100. 26 into 4. 4 into 10, that is 40%. What is the ratio of number of boys studying arts? Now boys studying arts is 352. Sorry, 364.
and number of girls studying arts is 252. Now take a ratio. Now सबसे पहले आप देखोगे 4 के टेबल बड़े आराम से चला जाता है. 4 into 6 3, 4 into 9 1. अब ये 7 के टेबल पे चला जाएगा. 7 13 7 9. So 13:9 is my answer. Total number of students, that was simple. 560 and 1040 1600. Total studying commerce, 416 plus 104 520. That is the answer. This ends the caselets. टॉपिक समझ आया है? क्लियर है? हाँ जी सर. Yes, sir. आपको समझ आया जी? ग्रेट. यू हैव द प्रैक्टिस बुक फॉर इट, और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आप लोग. ठीक है. एंड लेट मी नो इफ एनी डाउट कम्स, विल टेक इट टुमारो. ओके? ओके सर. Okay, sir. Any doubts anybody has before we end the class? नो सर. No, sir.